बिग फोर की जो लोग एस्पिरेशन रखते हैं, क्या वो एक 9 to 5 मेंटालिटी से सक्सीड कर सकते हैं इवन इफ दे गेट इनटू इट, और दे नीड टू हैव some other form of thought process? Another 5 years from now, I think 50% of our working population, or at least 45-50% of working population will be all Gen Z. टाइम पे आए ना आए, टाइम पे छुट्टी चाहिए, टाइम पे काम फिनिश होना हो, टाइम पे लंच करना है, हॉलीडेज फेस्टिवल्स, बीच में वर्क फ्रॉम होम भी थोड़ा सा डाल दो सर, रिपोर्टिंग मैनेजर ने टोक दिया तो एक नया वर्ड है आजकल टॉक्सिक कल्चर और व्हाटएवर। आप अग्री करते हो ये मेंटालिटी है मोस्ट ऑफ द जेन जी में? और अगर है तो आगे क्या होगा 5 साल बाद? That we'll have to evolve our managerial style to interact with this Gen Z. Let me assure you, उसमें कुछ आसान नहीं है. When you started your career, say in your early 20s, at that time, how many hours you used to put on an average? And today, how many hours do you put? एक मेरा प्रिंसिपल है विपिन कि, और ये मुझसे पहले भी पूछा गया है, हाँ, that मैं कभी I never think of myself as a woman when I'm at work. I am a professional. I am a worker. I am an employee. And my job is to deliver what I'm setting out to do. Or that I have long hair, or that I have a mustache, or that I wear a blue blazer is irrelevant. Okay. Right? Now tell us about your SheExo program. Very interesting name first, SheExo. So throw some light on personal branding. Firstly, why is it important? A topic a lot of people have spoken about, which is work-life balance. So your thoughts? Work-life क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं हम? हाँ. Isn't work a part of life? It is. It should be Phrasing life अलग. balance, you know? Welcome to Podcast by Space Creators. Today we are going to talk about SheExo. Now, आप लोग सोच रहे होंगे SheExo क्या है? Now, women leadership is brewing in our country. And let me tell you, India will rule with women leadership. Today we have someone very special. She has about 37 years of experience in corporate leadership, out of which 33 years she spent with Deloitte. She's a partner with Deloitte, but the most important thing, she's a mixture of a great mother, a perfect boss, a great worker, and somebody who has changed according to times. जेन जी का टाइम है, AI का टाइम है, आप किसी भी चीज़ के बारे में इनसे बात कर लो. ये मर्जर और एक्विजिशंस की दुनिया से आती हैं, वेयर शी इज़ बिन पार्ट ऑफ many mergers and acquisitions. But today she runs a program for Deloitte called SheExo, where she empowers more than 1,000 women leaders in leadership and all big organizations. This podcast will be very interesting for any kind of leader, not only women, where we will learn about personal branding. We will learn about how you build a team, how you can be a great reporting manager. We will also learn about that when you're at a managerial position, what are the things which will take you higher in the ladder. We will also learn about that how to deal with Gen Z. And if you're a Gen Z, don't worry, there are exceptions. And she has a very positive outlook that in the next 5 years, when you will be a majority of our workforce in India, how you will be taking care of our country. So, very interesting podcast. Let's welcome Kalpana. Hi Vipin, thank you for having me here today. It's really an exciting afternoon I intend to spend with you. Thank you, Kalpana. Now, आज का जो सबसे हॉट बर्निंग टॉपिक है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे. एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू बिग फोर, वो इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज फ्रॉम ऑल द पीपल ऑन द आउटसाइड वी थिंक जितना काम बिग फोर के लोग करते हैं वो उतना काम शायद कोई और नहीं करता होगा, तो हमें ऐसे लगता है. और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, सो यू गेट यूज टू दैट ग्राइंड इफ यू वांट टू गेट इनटू अ बिग फोर. So abhi somebody very senior said that in India at least we require a 90-hour work week. Now my question to you is, I don't have a question. I want your comment on it, or your point of view on it, from not only
90-hour work week for anybody, but survival in Big Four, is this the requirement? So the response is yes and no. Okay. And the yes and no is 90 is a number. Acha. It doesn't have relevance. Every week you don't work 90 hours. In fact, if I look back on my 32 or 33-year career, there would be some weeks I would have worked Done 90 hours hours. किया होगा, हाँ. But it's not every week I worked 90 hours. And those stand out and I talk about them and I show off about them also. कि मैंने इतना काम किया था types, you know. So I think the question is not whether we need to work 90 hours. The question is that we need to be committed to and get what needs to be done. Okay. Done. That's Okay. the point. Okay. And what does that mean? Sometimes you will be working really very intensely. After all, Big Four and other consulting firms, including IT firms, maybe the culture there is a little different, but it really comes from the fact that you are delivering something client को भेजना है आपने. तो क्लाइंट ड्राइव करता है उसको कब तक भेजना और वो भी किस साइज के क्लाइंट को? है. साइज, हर साइज का क्लाइंट मिलेगा आपको. तो वो बाहर भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, साउथ इंडिया में भी हो सकते हैं, बंगाल में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं क्लाइंट. तो क्लाइंट ड्राइव करता है कि उनके डिलीवरेबल कब तक आपको देना है. उस हिसाब से ईच वन ऑफ अस जो बिग फोर में काम करते हैं या एस्पिरेशन रखते हैं बिग फोर में काम करने को, उसको ये समझना है कि हमको कुछ अकम्प्लिश करना है. हमारा एक प्रोजेक्ट पार्ट है जो हमें करना है, वो हम कर लेंगे तो हम 20 घंटे भी काम कर सकते हैं, और 90 तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाता है. लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग. एंड द इंटेंट इज़ नॉट द टर्म ऑफ टॉक्सिक कल्चर जो हम सुन रहे हैं आजकल इतना, वो इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि जी फ्रॉम लैक ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ कि जो हम काम कर रहे हैं. लेट मी से आई एम अ कंसल्टेंट, आई एम एन एंट्री लेवल पर्सन इन अ बिग फोर. जो मैं काम कर रही हूँ वो कैसे बिग पिक्चर में फिट होता है. ओके. आई थिंक जब हम यंग थे, जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया था, तो मुझे पूरी अप्रिसिएशन थी, पूरी समझ थी कि बिग पिक्चर क्या है. ओके. मैं जो कर रही हूँ वो किस तरह से बिग क्लाइंट पिक्चर में फिट इन होता है, हाँ, या और क्लाइंट को क्या important है? फायदा होगा, उससे क्लाइंट क्या कर पाएगा, ये हमारा क्लैरिटी थी. आज शायद ये थोड़ी लॉस हो गई है. अच्छा. तो इसलिए फिर मुझे लगता है कि मेरे को जो टास्क दिया गया है बस मैं वही वो कर complete कर दूँ. लूँ. हाँ, मैं वो कंप्लीट करूँ. मैं तो भैया 9 to 5 नौकरी करूँगी और मैं तो थैंक यू वेरी मच होके चले जाऊँगी. मेरे तो घर में भी लुक आफ्टर करना है. घर हमने भी लुक आफ्टर किया है. बट द पॉइंट इज इन एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, ये मैं हर एक को कहती हूँ, बचपन से कहती आ रही हूँ, विमेन को जो पर्टिकुलरली बोलती हूँ, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम यू चूज योर प्रायोरिटी. सो to the point that some of our leaders have met, poor fellows, they've got beaten up very badly. They probably needed PR agents to present it better. But one has to understand what was the thought intent behind it. So one more point I want to make on this. See, countries worked really hard. 16-hour work days, 14-hour work days. A country like Germany, a country like Japan, when they were going through their phase of growing up, of From developed yeah. to become developed nations, Yeah. they paid in those hours. Today they are having trouble even finding three and a half days of work week, you know, because there is no growth potential. We in India are growing at anywhere between 7 to 10%, and we are going to continue to grow at 7 to 10% until such time हमारी per capita income उस लेवल पे पहुंच जाए जो इन सब डेवलप्ड कंट्रीज की है, जो हम सब चाहते हैं. हाँ. तो उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे. अगर तुम 4 घंटे गड्ढा खोदोगे तो इतना गड्ढा खोदेगा, 10 घंटे गड्ढा खोदोगे तो इतना ज्यादा खोदेगा. तो खोदना है ना अभी गड्ढा. और जो नहीं खोदना चाहता वो 4 ही खोदे. कौन कहता है बिग फोर में तुम काम करो अगर तुम नहीं चाहते हार्ड वर्क करना. हैविंग सेड दैट, वी हैव टू फाइंड आवर ओन बैलेंस. हम सबको जो करो बिग फोर में भी काम, और ये नहीं है कि बिग फोर में काम करोगे तो 23 घंटे ऐसे काम करके काम ही करते रह जाओगे और मतलब कहना नहीं चाहिए स्पाउस को नहीं देखोगे. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू नीड टू चूज इन एवरी मिनट. आज प्रोजेक्ट पीक पे है तो तुम 90 आवर वर्क कर रहे हो. कल प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया तो तुम जाओ बहामास में जाके छुट्टी मनाओ, चलो कोई नहीं गोवा चले जाओ. बट दैट्स द पॉइंट. So the balance has to be found by each one of us given जिस context में हम काम कर रहे हैं. अब इसमें 2 क्वेश्चन है. आपने पहले बोला कि शुरू में मतलब when you were younger it was clear that whatever work you're doing, एक कंपनी के लिए आप एक काम कर रहे हो और आपको क्लियर है कि ये क्लाइंट को कैसे फायदा करने वाला है, और द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वर्क, और यू हैड दैट अप्रिसिएशन. दैट अप्रिसिएशन वॉज कि ये क्लाइंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है
और you used to get appreciated by your reporting manager? दोनों में से क्या था? देखो ये रिपोर्टिंग मैनेजर तो हर किस्म के मिले। कुछ इस टाइप के मिले जो बहुत अप्रिशिएटिव थे और कुछ इस टाइप के मिले कि कुछ ही कर लो खुश नहीं होते थे। हाँ। तो यस, टू सम एक्सटेंट अप्रिसिएशन मेक्स अ डिफरेंस। ह्यूमन बीइंग्स आर ड्रिवन बाय हाँ। अप्रिसिएशन, नो डाउट, बट आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ। It is तो a bit of both. इट्स व्हेन आई वाज टॉकिंग अर्लियर आई वाज रेफरिंग टू द बिग पिक्चर। मुझे मालूम है कि अगर मैं ये लेट्स से आईटी कोडर हूँ, मैं टेक्नोलॉजी में हूँ, तो कोडिंग कर लूंगी तो ये इस तरह से पूरे प्रोग्राम में फिट होता है। दिस इज द होल प्रोग्राम व्हाट इट्स गोइंग टू बी अबाउट, कैसे फायदा होगा। सो अगले दिन मैं जाके बोल सकती हूँ या घर पे जाके बोल सकती हूँ अपने बच्चों को कि अरे आई एम वर्किंग ऑन दिस बिग थिंग, जिससे रेलवे सिस्टम बिल्कुल बढ़िया चलने लगेगा, यू नो, इवन इफ आई एम जस्ट अ 1 year एक्सपीरियंस बच्चा, यू नो, but it's the So you sense carry of the pride. pride. The Yes, carry the the sense of pride. pride. Yes, Yeah. yes, yes. That you're saying कि miss हो जाता है, then people start calculating the number of हाँ, hours. बिकॉज दे डोंट सी उनके करने से क्या फायदा है, उनको बस टास्क रखता है। वो बॉस बोलता है कि रात को भाई 7 बजे काम दिया है तो 10 बजे करके दे दियो, तो तुम गाली निकालोगे ना, टॉक्सिक कल्चर ही डिस्क्राइब करोगे ना। तो मैनेजर बेचारा ये भी करे कि समझाए कि बेटा तू ये करेगा तो इससे ये फायदा होगा, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग इज रिक्वायर्ड, विच आई थिंक बिकॉज वी वर स्मॉलर टीम्स अर्लियर and we used to work more closely together as teams. So it was the communication was easily easier. तो अब क्या जरूरत है, you need to do it as a orchestrated, thought out, टू डू लिस्ट में लिख के कि भैया एक्सप्लेन करो कि क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो, उससे क्या फायदा होगा। Perfect. Now, I think this can be a big coaching for a lot of reporting managers in any field, not only Big Four, that they can actually create this with their team. कि आप जो कर रहे हो उससे कंपनी में क्या फ़ायदा होने वाला है। एक चीज़ और बताओ, बिग फोर की जो लोग एस्पिरेशन रखते हैं, क्या वो एक 9 to 5 मेंटालिटी से सक्सीड कर सकते हैं इवन इफ दे गेट इनटू इट, और they need to have some other form of thought process? So it's really a question of how ambitious you are. Okay. And really a question of what is the longevity of career you want with a big four. That's why I'm asking you. You spent 32 years. That's why. Yeah. That is true. Yeah. नहीं तो अब विपिन बेस समझो, जितने लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं वो उतने सारे तो पार्टनर नहीं बनते, सारे तो लीडरशिप में नहीं जाते। और पहले जब हम 20 साल पहले जब मेरे को 33 इयर्स हो गया प्रोफेशन ज्वाइन किए, उस समय मैंने तो नहीं सोचा था कि मुझे पार्टनर बनना है, ये नहीं बनना, बट समवेयर अलोंग द वे मुझे लगा हाँ दैट इज द नेचुरल प्रोग्रेशन, आई डू वांट टू बिकम अ पार्टनर। सो दैट मीन्स यू हैव अ कमिटमेंट टू योर करियर, यू हैव अ कमिटमेंट टू व्हाट यू वांट टू गेन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू आर जॉइनिंग। सो you can join a big four, you can do defined work because there's need for that also. We are such large organizations, there will be people who do pieces of the pie and they will do just that, but they may or may not progress along the ladder in a consulting firm, and that's also perfectly fine. So it's like आज की डेट में गिग वर्किंग कितनी हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग कितनी हो रही है, अगर आप आईटी इंडस्ट्री पर्टिकुलरली देख, बिकॉज वी स्टार्टेड अवर कॉन्वर्सेशन विद आईटी इंडस्ट्री, दोज पीपल जस्ट डू देयर बिट एंड दे आर ओके. There are so many contract workers work, they are okay. My son for example, he works on a contractual basis. वो अपने जो काम करना है वो कर देता है, ऑफिस नहीं जाना होता उसको. उसका एक कोलीग है जो फुल टाइम अभी ज्वाइन किया, कहता है यू आर सो लकी, यू नो. सो देयर आर, इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर पर्सनल एस्पिरेशंस आर. आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं. अगर आप तबला प्लेयर हो और आप रोज 4 घंटे रियाज करना चाहते हो, पर आपको कमाने की भी ज़रूरत है, आप हो आईटी डेवलपर हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो कीजिए, आप 6 घंटे ये काम करिए और 4 घंटे आप रियाज करिए. पर फिर ये ना सोचिए कि आप पार्टनर बन जाएंगे या फर्म में सीईओ बन जाएंगे, वो नहीं होगा फिर. सो चॉइस की बात है एक तरह से. सो जो एस्पिरेशन रखता है, टू आंसर योर क्वेश्चन, जो एस्पिरेशन रखता है बिग फोर में आने की, वो ये सोच के चले कि उसकी पर्सनल एस्पिरेशन, पर्सनल करियर जर्नी, पर्सनल एक्सपेक्टेशन क्या है. अगर वो चाहता है कि वो पार्टनर बनेगा और वो बनेगी, सॉरी आई शुड बी सेइंग दैट, हाँ बनेगी, तो देन देयर इज अ कमिटमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड. जस्ट एज आई सेड, गड्ढा खोद रहे हो, कितना डीप गड्ढा खोदना है. तो मैं गड्ढा नहीं खोद रही, मैं पहाड़ बना रही हूँ. कितना ऊंचा चढ़ना है आपको, तो आप एफर्ट उतना ही करोगे ना अकॉर्डिंगली. अब एक चीज और बताओ. नाउ वन कॉन्वर्सेशन दैट इज गोइंग अराउंड, एंड आई एम ऑल्सो a business person, so I also keep hiring, is about Gen Z. Okay, in another 5 years from now, I think 50% of our working population, or at least 45-50% of working population will be all Gen Z. अब Gen Z में एक चीज देखी जाती है,
जो कि कॉमन है, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा मैं, बिकॉज एक्सेप्शंस कांट बी अ रूल, कि टाइम पे आए ना आए, टाइम पे छुट्टी चाहिए, टाइम पे काम फिनिश होना हो, टाइम पे लंच करना है, हॉलीडेज फेस्टिवल्स, बीच में वर्क फ्रॉम होम भी थोड़ा सा डाल दो सर। नहीं भी है, अब जैसे मैं रियल एस्टेट में हूँ, हमारे में वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बट उसमें भी एक्सपेक्टेंस हो जाती है। अगर किसी ने कुछ रिपोर्टिंग मैनेजर ने टोक दिया तो एक नया वर्ड है आजकल, टॉक्सिक कल्चर और व्हाटएवर। तो अगर ये 50% के आसपास क्रॉस करेगी, ठीक है, तो इस मेंटालिटी से, पहली चीज आप अग्री करते हो ये मेंटालिटी है मोस्ट ऑफ द जेंजी में, और अगर है तो आगे क्या होगा 5 साल बाद? So this is something which I have examined in my head. हम्म एंड टू बी ऑनेस्ट आई डील विद जेन जी। जब मैं काम करती हूँ तो जेन जी हैं हमारी हम्म टीम में। हम्म और मैं और मेरे बच्चे हम्म वो भी जेन जी ही हैं ना, एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, तो कई बारी मैं तो उनको लेक्चर देती हूँ कि भाई कैसे तुम काम कर रहे हो, हम तो जब काम करना होता है तो ये भी करते थे वो भी करते, तुम क्या 11 बजे उठ के काम कर रहे हो। हाँ, हम अपने बेटे को मैंने कही झिड़की लगाई है। बेटी तो मेरी बड़ी डिफरेंट जेंसी है, वो आई गेस मोर मिलेनियल की तरफ है, हाँ। बट she'll get up at 6 o'clock and go for a shoot, वो right? एक्सेप्शन, वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हाँ वो एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शन ऑलवेज नहीं, नो सच्ची में एक्सेप्शन। हम्म But my son is like the other Gen Zs. They're like the people I deal with also. So in the beginning, in the beginning, it was very distressing. And it's a wrong thing to say ना, कह नहीं सकते ना, politically incorrect होता है कि यार तुम लोग कैसे काम करते हो, हम तो ऐसे नहीं करते थे, है ना, गलत चीज़ होती है ना, बच्चों को चाहे टीम मेंबर्स को नहीं बोल सकते हैं वैसे। सो देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक तो आई हैव मॉड्यूलेटेड माई सेल्फ, कुछ नहीं कह सकते आजकल के बच्चों को, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बिकॉज दूसरी बात ये है कि तुम उन्हें ओन नहीं करते हो। पहले जब हम एक टीम में काम करते थे ओन तो करते थे हम तो, हाँ एक दूसरे को ओन करते थे, एक बॉस दूसरे को तुम्हें भी own ओन करता करते था और तुम बॉस को ओन करते थे। हम्म अब आज इस बॉस के संग काम कर रहे हो, कल उस बॉस के संग काम कर रहे हो, तो ये तो दिस इज द नेचुरल प्रोग्रेशन विच हैज हैपेंड। सो टू बैड, वील हैव टू इवॉल्व आवर मैनेजरियल स्टाइल टू इंटरैक्ट विद दिस जेंसी। लेट मी अश्योर यू, उसमें कुछ आसान नहीं है। मन तो करता है लगा के, बट यू नो, ये तो एक्शेल्स पे चलने वाली बात है। एग्जैक्टली नहीं, एगशेल्स पे ही चलते हैं, पहली बात ये। बट आई थिंक हमारी जनरेशन के लिए भी इट इज़ अ गुड लर्निंग कि भैया शांत हो जाओ, रिटायर होएंगे तो शांति होने चाहिए ना। तो इसलिए गुड ट्रेनिंग है, हमें को ऐसे समझ के चलना चाहिए कि हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हो भाई, एक तरह से। बट आई थिंक अगेन, मैंने ये पहले भी कहा कि टू शो देम द बिग पिक्चर, टू शो देम व्हाई व्हाट दे डू इज really important in the scheme of things, I think that helps. It gives them a sense of ownership. To come to your question कि भाई क्या होगा 5 साल 50% हो बाद जाएंगे में, तो 50% जेंजी हो गए तो कुछ तो होप एंड एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशन दिल में चाहा है कि जो कुछ ये जेंजी है वो जेंजी से ऊपर जा चुकेगी। वो मतलब दे विल हैव रिकग्नाइज्ड एंड सीन what needs to be done. क्योंकि हर कोई 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे का काम करके चले गएगा तो किसी को तो पिरोना पड़ेगा ना इसको साथ, टू बी एक्चुअली गेट जो भी डिलीवर करना है उसको करने के लिए। तो कुछ तो होंगे जो एक्सेप्शंस होंगे, जो आप कह रहे थे एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे, नहीं एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उनकी बेसिस पे उम्मीद कायम है, लेट मी पुट इट दिस वे। सो वो रहेंगे, उनको देख के एंड सी उनकी क्या करियर प्रोग्रेशन है, कुछ और कन्वर्ट हो जाएंगे और बाकी वर्कर बीज रहेंगे। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, मुझे हॉरिबल ऑप्टिमिस्ट भी कहा गया है लाइफ में, तो मैं पॉजिटिव हूँ। मेरे हिसाब से दे विल जस्ट हैव टू लर्न, इट विल बी हार्ड फॉर देम, आसान नहीं होगा क्योंकि करा ही नहीं होगा उस तरह से, बट जो एम्बिशियस होंगे वो कर लेंगे, वो सीख जाएंगे, थोड़े फाइट मारेंगे बेचारे, तो बीच में कई साल यू विल नॉट बी एबल टू लुक एट योर स्पाउस एज ऑफन एज यू वांट। But it may happen unless you're very smart and you figure that out, or you get your spouse to work with you, then maybe you could stare at your spouse as much, you know. वो तो मोस्टली कहते हैं कि टेरिबल कॉम्बिनेशन होता है मोस्टली। हाँ, I agree वैसे, I completely agree on that वैसे। So I think it will evolve. देखो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था या जेन एआई आई है अभी, हम कहते थे सब डूब जाएगा, नहीं हो सकता है, नो जॉब्स विल बी देयर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कैसे पीपल विल लूज, बट इट चेंज्ड, ऑल ऑफ अस लर्न टू डू इट डिफरेंटली। विद जेन एआई वी आर लर्निंग टू डू इट डिफरेंटली, अभी इट्स ओनली द स्टार्ट। सो आई थिंक इवॉल्व होएगा एंड यू विल हैव अ न्यू रेंज ऑफ मैनेजर्स, बट टू पुट आउट अ पॉइंट फॉर दोज who are willing to extend themselves, who are willing to step up, their career graphs will look steeper, stellar is the word, than those who want to be worker bees. Yeah. But if somebody wants to be a worker bee, fine. We should not sit judgment on them. See, another thing which I think what can
make this revolution happen is the aspirations these guys have. Because Gen Z की aspiration बहुत है. एक level पे entitlement भी बहुत है, और दूसरे level पे aspiration भी बहुत है कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए. Maybe that is the, I'm using a wrong word, but I will use it. That is the bait I think the managers need to put in. The Absolutely. aspirations If that you they realize, have. विपिन, मैंने यही बोला है कि हाँ. तुम देखो या तुम्हारे मैनेजर कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, या तुम्हारे साथ जो बंदा बैठता था जो तैयार था कि यार कोई नहीं 6 बज गए, मैं 2 घंटे और काम करने को तैयार हूँ, फॉर एग्जांपल, और उसको प्रमोशन मिली, उसको एडवांसमेंट मिली, उसको बेस्ट प्रोजेक्ट मिला, उसको बेस्ट क्लाइंट मिला, तो अगला बोलेगा यार बात तो ठीक है. जो अगला है, द वर्ड अगला आई एम यूजिंग, वो 2 चीज़ें कर सकता है. या तो क्या गया यार कितना टॉक्सिक कल्चर है, इसको 6 बजे से 8 बजे तक रोक लिया, मैं तो नहीं करता या नहीं करता. कब तक बोलेगा? या तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चला जाएगा, या वो वहीं रहेगा, या वो चेंज हो जाएगा. तो हम होप कर रहे हैं इनफ चेंज हो जाए ताकि मैनेजरियल रिक्वायरमेंट्स आर मेट. दैट्स हाउ वी डू, यू नो. इसमें एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ. When you started your career, say in your early 20s, at that time, how many hours you used to put on an average? And today, how many hours do you put? Is there any अभी difference का at बता the दिया, level of partner? मुझे तो बहुत वरी है. अभी का बता दिया तो फिर हो सकता है मेरी पार्टनरशिप फर्म बोले मैडम आप रिटायर हो जाओ. नहीं, सो इट्स ट्रू, व्हेन वी वर यंगर, सी वी डिडंट हैव दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव टुडे. हाँ. एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट काइंड ऑफ वर्क जो मैं करती थी, हम मार्केट रिसर्च करते थे. Okay. तो जैसे पेपर पे मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो चांदनी चौक के जूते जाना पड़ता घिसने था. जाना पड़ता था. और सड़ी गर्मी में जून के महीने में भी हम जाना गए पड़ता. हैं. और लाइब्रेरी होती थी तो पब्लिक लाइब्रेरी में चले जाओ, आईआईटी दिल्ली की लाइब्रेरी में चले जाओ, वहाँ पे पुराना इन्फॉर्मेशन होता था, पुराना डेटा होता था. आज की डेट में वो डेटा एट अ क्लिक ऑफ अ बटन अवेलेबल मिल है. जाता है. आज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है. द प्रॉब्लम इज यू नीड टू सिफ्ट थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन. उस ज़माने में इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू द सेम थिंग just to create that. Create that. So I think that is also one of the reasons we worked very hard. I think on the average I would have worked 10 hours a day. 10 hours a day तो नॉर्मल था. बट बहुत से दिन महीने में तुम 12 बजे तक बैठे थे. मुझे आज तक याद है कि एक दिन मैं पूरी रात काम किया और नेक्स्ट डे क्लाइंट आ रहा था जर्मनी से. हमारी प्रेजेंटेशन थी उसको, और सुबह हम 6 बजे फाइनल प्रेजेंटेशन बना रहे थे. उससे पहले हमारी एनालिसिस ही नहीं खत्म हो रही थी. मेरी पूरी टीम बैठी थी, मैं भी बैठी थी. अगले दिन आके मेरे सारे कॉलीग्स ने मुझे बहुत डांटा कि, एंड मेरी बेटी तब 2 साल की थी, मैं डॉटर वाज 2 years old. तो मेरे कॉलीग्स ने बहुत डांटा कि यार तू कमाल है, बॉस तो तेरा ही बखान करे जा रहा है. मतलब वी वर गुड फ्रेंड्स, माय कॉलीग्स. बॉस तो तेरा ही बखान करे जा रहा है कि वो पूरी रात काम किया है. शी हैज अ 2-year-old डॉटर, इवन देन शी हैज बीन वर्किंग ऑल नाइट. तो मैंने कहा यार गलत sorry. एग्जांपल. मैंने हाथ जोड़ के सारे कोलीग से अपने, मैंने कहा माफ़ कर दे यार, क्या करें, वो क्लाइंट ने आना था, करना था. बिग पिक्चर पता था ना मुझे, क्लाइंट आएगा, हमको प्रेजेंट करना है. एंड दे वर ऑल्सो जोकिंग, बट इट आई मस्ट हैव डन समटाइम्स ऑल नाइटर्स, वी मस्ट हैव डन. बट आप कॉलेज में थे, प्रोजेक्ट सबमिशन होती थी, ऑल नाइटर्स करते थे ना. तो हो सकता है हमको पहले करना चाहिए था शुरू, हो सकता है मेरे मैनेजर ने डिलेड हमें इंस्ट्रक्शन दिया, मुझे याद नहीं आता है. बट ये सब नेचुरल नॉर्मल ह्यूमन थिंग्स होती हैं. सो एवरेज काउंट करना एक चीज़ है, मोमेंटरी हर मोमेंट में अगर उस दिन अगले दिन क्लाइंट प्रेजेंटेशन है तो और जर्मनी से आए तो करेंगे ही. और मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? जो मैं और मेरे टीम मेंबर्स हैं, हम ही तो करेंगे. हम खुशी से करते थे, कंप्लेन नहीं करते थे. अगले दिन हमारे बॉस ने हमको बोला कि बेटा तो आज छुट्टी ले लो. हम बड़े खुश, हम सारे मिलके ही गए. वी ऑल स्टिल वेंट आउट टुगेदर एंड हैड लंच एंड वेंट. सो आई थिंक मैनेजर्स ऑल्सो नीड टू कीप दिस इन माइंड. Okay. That when people step out of the normal, when they extend themselves, आपको कमिटमेंट से काम करें, आप भाई आपकी भी तो सक्सेस उससे लिंक्ड है, तो प्लीज़ रिवॉर्ड देम, प्लीज़ रिकग्नाइज देम. And it is not necessarily, it's not only money, it's also how you recognize them, how you appreciate it, how you value it. That is a very important aspect of Now, working with people. as a woman leader, you know, before you got into leadership, okay, position, what were the challenges that you faced? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक मेरा प्रिंसिपल है विपिन कि, और ये मेरे से पहले भी पूछा गया है, हाँ. that मैं कभी I never think of myself as a woman when I'm at work. I am a professional. I am a worker. I am an employee. And my job is to deliver what I'm setting out to do.
Okay. That I am woman, or that I have long hair, or that I have a mustache, or that I wear a blue blazer, or that I wear sandals, or that I wear boots, or that I wear a cap is irrelevant, Okay. right? I have always viewed myself as a professional. And always. Always, through my Okay. life, through my life. Having said that, it's not only me. भाई जो सामने है वो क्या सोचता है, वो मुझे औरत समझता है, आदमी समझता है, उससे फर्क पड़ता है. एंड वो औरत समझता था. तो मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूँ, बहुत ही बड़ी हाँ. मजेदार कहानी. तो मेरे बॉस, एंड रियली आई हैव अ लॉट टू थैंक हिम फॉर. मेरे बॉस एक आया क्लाइंट हमारे. आई यूज्ड टू डू mergers and acquisitions and financial restructuring and fundraising, you know. तो एक क्लाइंट आया हमारे, 3 जेंटलमैन थे, must be 40-45 plus, all 3. How old were you at that time? I was a manager. तो आई Okay. वॉज अ मैनेजर, मतलब मैं 35 Okay. के करीब की होंगी, 34-35 की. तो मैंने उनको रिसीव किया, हमने चिट चैट करी, मैंने चाय कॉफ़ी पूछी, हमने इकोनॉमी के बारे में बात किया, इकोनॉमिक टाइम्स में सुबह क्या आया था उसके डिस्कशन किया, पॉलिटिकल डिस्कशन किया थोड़ा बहुत. फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा आप बताइए, हाँ जी, मे आई नो what is on your mind. So they were squirming in their seats like this, and isn't there anybody more senior joining us? तो और ये एक तो नहीं client कह सकते ना कि आदमी नहीं आया. Some big client. हाँ बिग क्लाइंट ऑफ कोर्स. तो ये तो आदमी तो नहीं पूछ सकते, बट isn't there anybody more senior joining us? तो मैंने कहा जस्ट गिव मी अ मिनट. मैं उठी, मैं गई अपने बॉस के पास, वो पार्टनर थे, हाँ. और मैंने कहा सर वो कोई सीनियर मांग रहे हैं सर. तो कहते हैं ए यू गो अवे, यू कैन हैंडल इट, तू कर सकती है, तू कर ले अपने आप से. मैंने सर प्लीज़ आ जाओ ना सर. तो वो आए, बैठे, फिर 5 मिनट चिट चैट हुई, ठीक है. फिर चाय कॉफ़ी की राउंड पूछी उन्होंने. मतलब चाय कॉफ़ी पूछने के लिए मैं ठीक थी, बट जो उनकी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वायरमेंट थी वो उन्हें कंफर्ट नहीं लगा. तो मेरा बॉस, एंड यू क्रेडिट टू हिम, वो आए, बैठे, फिर उन्होंने फाइनली बात करनी शुरू करी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, व्हाट दे नीडेड एक्सेट्रा. एंड माय बॉस जस्ट स्माइल्ड थ्रू द मीटिंग, जस्ट स्माइल्ड, हाफ अ स्माइल ऑन हिज फेस. और सारे क्वेश्चन जो वो बोले, देख के उन्हें बात करें, जवाब मुझसे मिले. तो 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे गए होंगे. फिर उसके बाद से उन्होंने रियलाइज करे बात तो यही कर रही है. अच्छा, बात करने में तो मैं वैसे ही, तुम देख ही लिया. तो फिर देन आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम नो, दे नेवर आस्क्ड फॉर एनीबडी मोर सीनियर. So here the credit goes to Your my boss. He was great at that. तो वो तो in fact he used to tell me, you please look at me and let me know what I'm not supposed to say, you know, because I used to know my clients' problems, their solutions so much in depth. तो मेरे से बात करते थे. बट ये हुआ, ये आदमी के संग नहीं होता शायद, you know. In with me it has happened. Then people will ask, एक जी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे एक बिजनेस के. उनके लिए हम एक्विजिशन करने गए बैंगलोर. आपके क्लाइंट? मेरे क्लाइंट, हाँ. उनके साथ उनके लिए एक कंपनी खरीद रहे थे वो. बहुत पुरानी बात है. तो वो वहाँ पे हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि काउंटर पार्टी आएगी जिसको बाय करना है. तो मैं, मेरे बॉस और वो सामने बैठे हैं. तो जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर पूछते, सो आर यू मैरिड? तो मैं तो तिल मिला गई. एंड आई वॉज ऑल ऑफ 27 years old. आई वॉज बेयरली मैरिड, आई वॉज मैरिड अ ईयर. तो मैंने बोला हाउ इज दैट रेलिवेंट? माई बॉस, हिज हैंड शॉट फ्रॉम अंडर द टेबल. अरे शांत हो जा, गदादारी नहीं कर, शांत हो जा. तो इतनी देर में खैर बात इधर उधर हो गई, मैंने जवाब नहीं दिया. क्लाइंट वो आ गया, काउंटर पार्टी, तो डिस्कशन हो गई. अच्छा, ये बात हो गई. कम फॉरवर्ड टू लास्ट ईयर. Last year, my same boss met him in Bombay. He's now the managing director of a very large company. Okay. That time he's the joint managing director, very large company. And he asked, they met at an airport or something in Mumbai. And he asked, this erstwhile joint managing director asked my boss, कि अरे भाई, how is Kalpana? Oh, Kalpana Jain कैसी है? I've been following her. उनका Economic Times में भी आया था, उन्होंने बहुत बड़ा transaction किया था. How is she? तो you know, my boss was very surprised. He says, you remember her? He says, how can I not remember her? I told the instance of my asking her, is she married? He remembered the instance also to my grown-up daughters. And they said, सही है पापा, उन्होंने ही आपको ठीक पोजीशन में put किया था. So I said, next time I'm sometime in Bombay, I must go and see him. Very, very nice. So you deal with a whole lot of things. Sometimes आप अपसेट हो जाते हो कुछ परी. मैं तो खैर बहुत मुँहफट हूँ, तो मैं जवाब भी दे देती हूँ. बट सी, हु वुड हैव थॉट कि उन पे इतना भारी असर पड़ेगा. एंड बोथ हिज डॉटर्स आर प्रोफेशनल्स, वेरी सक्सेसफुल इन देयर करियर्स टू. So the next point I want to ask you is about
SheExo program. I got it right this time. Absolutely. Now, before we get into SheExo, एक क्वेश्चन है. Now, और ये मैं सोच रहा था कि you were the way you were, and that's why you are where you are. But there are many women, I employ a lot of women, they are in my team, who want to grow, who want to be in leadership. But they're not that bold enough because of circumstances, family में ऐसे है या upbringing ऐसे, no matter what you say, in the world अगर हम कुछ मर्जी बोल दें कि हम बैकवर्ड कंट्री हैं या कुछ है, मगर अगर हम यूएस में या कहीं पे भी देखेंगे, कहीं पे भी विमेन लीडरशिप कोई ऐसे नहीं है कि बैंड बज रहे हैं, ठीक है. ड्यू टू वट एवर सर्कमस्टेंसेस they don't have that boldness or the courage to step up the way you did कि वो आज तक MD जानते हैं. What is your advice for them? You know, what would you say to them? They have the potential, they have everything, but that one lack of courage or maybe lack of support from you got the boss you got, उनको क्या कहोगे आप? तो विपिन, इसमें एक स्टेप में और पीछे जाऊंगी. तुम कह रहे हो कि women are keen, they are interested. There are very many women also besides this lot of women जो चाहती हैं कि वो आगे बढ़ें और leaders बने और effective and well known leaders बने. There are another group of women who don't want to be, because of their social conditioning. They have the potential. उन्होंने आता सब है, अगर उनसे कुछ भी इंटरैक्ट करो, पीपल स्किल्स अच्छी हैं, बिजनेस नॉलेज अच्छी है, जो भी कैपेबिलिटी स्किल सेट है बहुत बढ़िया है, बट उनमें एस्पिरेशन नहीं है. अगेन क्यों? क्योंकि उनकी सोशल कंडीशनिंग हुई हुई है ओवर द इयर्स. उनकी एस्पिरेशन शादी तक की है, एस्पिरेशन शादी तक की थी, या उनको बताया गया कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट. तो मेरे हिसाब से फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ विमेन, लुक, लेट्स अगेन आई एम गोइंग टू कम, आई गेस आई एम अ नेशनलिस्ट समवेयर. आप इंडिया को देखो, अगर हम 7 से 10% कितना भी आर्ग्यू कर लो, इतना तो हमारा ग्रोथ रेट है ही, और चलेगा ही अगले का. कितने लीडर्स चाहिए हमें? बहुत चाहिए. तो वो लीडर्स आदमी तो होंगे ही, बट औरत क्यों नहीं हो सकते? वाई शुड इट नॉट बी द विमेन? देयर आर दिस ह्यूज अपॉर्चुनिटीज कमिंग, तो द विमेन शुड बी टेकिंग अप दोज पोजीशंस. नाउ व्हाट इज इट दैट women need to do to make sure they become leaders and they are effective leaders? And what they do not need to do as well. What they do not need to do. Okay, I'll first go to that. That's a very good point, Vipin. What they do not need to do is to think of themselves as मैं बेचारी, I am needy, I need to be supported. Nothing. Women do not need a hand on my head. No, I do not need anything. You just need to step out there and speak from confidence and conduct yourself with confidence. That's my advice to the women. Having said that, what they need to do more of, one thing I found as I run my SheExo program for women in leadership from amongst our clients, is that women often are poor at networking. Networking मतलब क्या? कि मैं विपिन तुम्हें जानती हूँ, मैं लेट्स से मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं अपनी जैसे 5 कंपनियों में किसी और को जानती हूँ, चाहे डिफरेंट फंक्शन में हो, चाहे सेम फंक्शन में हो. मैं मार्केटिंग में हूँ, मैं फाइनेंस में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जानती हूँ फॉर एग्जांपल, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों को जानती हूँ. डू आई नो पीपल फ्रॉम, मैं मार्केटिंग में हूँ तो मैं IT में लोगों को जानती हूँ कि नहीं जानती, HR में किसी को जानती हूँ कि नहीं जानती. सो लीडरशिप का एक प्रिंसिपल होता है कि तुम जब लीडर हो जाओगे, सारा काम खुद तो अपने हाथ से नहीं कर सकते. यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू हैव टू गेट अदर पीपल टू वर्क विद यू, एंड इफ यू नो देम, if they know you, it works. It is easier. It works beautifully. Women often, because they have so many responsibilities, society invests many of them on them. They take on many without exception. Work is, I mean, at your job, it's one thing. There are jobs to be done at home, and there is things to be done at home. So they often are very focused on what they do. They do great jobs. I often find women very committed. Very sincere. Yes. And then they go home. So they don't spend time maroing a sutta, they won't hang around the coffee, they won't go out for a drink at the bar, or the events you get invited for in the evenings you don't go for. So willfully middle management women, up till middle management chal jata hai, but middle management and above middle management, women have to network. They have to find ways of joining communities. अब तो online भी बहुत possibilities है, of going to your industry events, of going for events which your
organizations organize for you to meet up with each other. It's very, very necessary. Yeah. And it's important to meet with people who are a level lower than you, a And level senior to senior you, to you. very, very important, and your level. Because those who are your level will be approximately going the same career track. So you'll have friends in the industry, friends in the organization, Yeah. friends in inverted commas. तो एक मेरे हुआ कि networking ज़रूर करें. दूसरी बात, जो भी टॉपिकल मैटर्स हैं, चाहे वो ESG है, सस्टेनेबिलिटी है, चाहे वो जेन AI है, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, ये आज की Educate टॉपिक्स हैं. themselves on it. वन मस्ट. हम Yeah. अगर मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर है तो मेरा फाइनेंस में तो मैं बड़ी गुरु हूँ, लेकिन मुझे बाकी चीज़ के बारे में पता ज़्यादा ही नहीं है. हाँ, एंड लीडरशिप में तुम नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. सो रोज़ हाफ एन आवर, मैं नुस्खे हैं मेरे, आधे घंटे रोज़ तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स रोज़ पढ़ो, जो भी पढ़ते हो पढ़ो, चाहे हैंड उस पर पढ़ो भाई, पुराने ज़माने की मैं इकोनॉमिक. एंड हफ्ते में 3 नए कॉन्टैक्ट्स बनाओ. नेटवर्क में बोल रहे हो ना, 3 नए कॉन्टैक्ट, फ़ोन उठा के बात करो और उसका एक रेगुलर केडेंस बना लो. पुट इन योर कैलेंडर टाइम, दिस इज माई नेटवर्किंग टाइम. 3 calls in the week कर सकते हैं, नो बिग डील. इवन इन द मिडल ऑफ मैनेजिंग योर बच्चा's education and making sure the doctor's visit happens and doing that board meeting that you need to go for, just put it in your calendar, make it a disciplined thing. So I'm talking about networking, I'm talking about upgrading Educating, skills, yeah. that you must make up. Skill to can in that also, because supposing you're in the IT sector, then you have to constantly upgrade. Make sure you're well informed about what's relevant अपने industry में, what is relevant in business as a whole, in the political environment as a whole. You can't not know कि यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या चल रहा है. You have to know for leadership. Yeah. And आप मुझसे बात कर रहे हो जैसे ऐसे अक्रॉस आप किसी भी इवेंट में जाए, बिजनेस मीटिंग में जाए, पहले 10-15 मिनट तो हम इधर उधर के गप्पे ही लड़ाते हैं. बिल्कुल. और आप कितनी इंटेलिजेंटली, कितने वेल इन्फॉर्मडली बात करते हैं, विल बिकम मेक इट वेरी क्लियर कि हमें इस बंदे के Because those people then go and speak about you बिल्कुल. to various other people in the industry or Absolutely. in their industry Absolutely. or in the network. और आपको रेफरेंस चाहिए होते हैं बाद में, आप नौकरी बदलो हाँ. तो आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में फ़ोन करके पूछना है ना भाई क्या चल रहा है आपके यहाँ, तो कैसे करोगे अगर आपका नेटवर्क ही नहीं होगा. करेक्ट. और अगर आपको किसी को हायर भी करना है तब भी आपको पता करना नेक्स्ट लेवल. करेक्ट. So Yeah. the level below, your level, and the level above. It's great to have those networks, you know. Now, this is piece of gold, because we'll come to your SheExo program. You run that program, but not everybody will be able to be part of it, right? Because You have to be a Deloitte client, very that's simply what put. I know. Bano Deloitte ke client and be part of my program, I know. you know. That's why I'm picking up whatever I can pick up so that people who are watching the podcast can make use of it. Now, tell us about your SheExo program. Very interesting name first, SheExo. So, pata hai, isme what I want to tell you first, and I say this to every woman leader, woman CEO, woman board member I meet. देखो जी, पितृ ऋण होता है ना. हाँ, पितृ ऋण होता है ना, that you have to give back to your generations. Now that would be very non-inclusive. तो मातृ ऋण मानती हूँ मैं ये. अच्छा. देखो मेरी लाइफ में, मेरे करियर में मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया इन देयर ओन वे, मेन एंड वेमेन बोथ. ठीक है. तो अब ये सारे जो विमेन लीडर्स हैं उनका मातृ ऋण है, दैट उनको बाकी नए जनरेशन्स को बनाना चाहिए. तो ये मेरी अंडरलाइंग फिलॉसफी है इस प्रोग्राम की. यहाँ पहुँच के दिस इंक्लूजन और विमेन खत्म हो जाता है. उसके बाद दिस इज वन कम्युनिटी ऑफ कॉर्पोरेट विमेन विच परहैप्स जितनी अटेंशन उन्हें देनी चाहिए, जितने इनपुट्स उन्हें मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते हैं फॉर वॉट एवर रीजन. नेटवर्किंग वो नहीं कर पाती हैं, शायद वो इतनी वेल इन्फॉर्म नहीं रहती हैं. मिडिल मैनेजमेंट के ऊपर, मिडिल मैनेजमेंट तक तो हार्ड वर्क मेक्स अ बिग डिफरेंस एंड कैपेबिलिटी मेक्स अ बिग डिफरेंस. उसके बाद ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो ये मेरे दिमाग में था, ये मेरे जहन में थे, एंड आई हैव माई CEO टू थैंक फॉर दिस बिकॉज यू नो ही कुड सी माई पैशन फॉर women development, so to speak, or to encourage women. He could see that, and he said that why don't you run a program for our women clients to advance them into leadership and to make them more effective leaders. Okay. So this SheExo program came about for who our, qualifies for it? The program right now I am focused on the C-suite. Okay. So CEOs, board members, and CFO, CMO, CIO, all the C-suite, all these, and the level below that. One level below. Well, this was my original intention, but I've noticed there are a lot of eager C-2s who are very, very keen, and I like their energy. उनका
मन में चाहे तो कहीं भी जा सकता है ना जा इंसान, सकता तो फिर उनके साथ काम करने में और मजा आता है, you know. Okay. तो Okay. दैट्स द इंटेंट राइट नाउ. Hmm. ये सक्सेसफुल हो जाए तो फिर और भी करेंगे, उसमें क्या है. तो इसमें आप करते क्या हो वैसे? सो वी, जो मैंने आपको You know why बताया. I'm asking this question? Now, many people, आप बोलोगे मेरा बिजनेस आइडिया तो नहीं चुरा रहा, बट आई एम सेइंग मेनी पीपल कैन पिक अप थिंग्स फ्रॉम हियर एंड मे बी इम्प्लीमेंट इट इन देयर ओन वे ऑफ कोर्स. इन देयर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रही हाँ. हूँ. मैंने आपको बोला क्या कि नेटवर्किंग की जरूरत है. आई एम एन Deloitte, through my firm, I'm an enabling platform to get these women to meet each other. Okay. So we have events, multiple events in the year, both in person and virtually. Okay. So at the events, number one, you get to meet each other. I make sure that they continue to be connected. There is an app we have created, तो वो एक दूसरे से connected रह सकती हैं. कल मेरा अगर let's say interview है for the next promotion, तो मैं उस ऐप पे जाके ढूंढ सकती हूँ कि दूसरी इंडस्ट्री में कौन और लोग हैं, उनसे कनेक्ट कर सकती हूँ. ये मेरा ऐप है, हमारी फर्म का ऐप है, तो उस पर जाके कनेक्ट कर सकते हैं. और मैं कॉल कर सकती हूँ, बॉस मुझे पता, ज्ञान दे दे थोड़ा सा, क्या आप यू नो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रैम्पेंट, मोर इम्पॉर्टेंट. हाँ, करेक्ट. फॉर एग्जांपल, और आई हैव अ बिग प्रोजेक्ट टू डू. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ उसके लिए. I can reach out to all these people and understand from them what they can do. So one is networking, two is knowledge upgradation and content upgradation, as they say. Three is mentoring. Most importantly, all of us, और ये हमारे एक ग्लोबल सीनियर लीडर ने कहा था कि हम मैन वुमन नॉट विथ स्टैंडिंग, इट डजेंट मैटर what your gender is, or you have long hair, short hair, black hair, white hair, you know, it doesn't matter. Everybody who's a leader has got mentoring through the course of their careers. तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि तुम्हें मेंटरिंग चाहिए. सबको मेंटरिंग चाहिए होती है. कभी लंबी मेंटरिंग चाहिए, कभी पर्सनल ब्रांडिंग पे चाहिए कि भाई यू पुट योरसेल्फ आउट देयर. विमेन आर ऑफन नोन टू बी रेटिसेंट, कि वो बोलेंगी नहीं, पीछे रहते हैं. हाँ, पीछे रहते हैं, तो वो बोलेंगी नहीं. उनको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, एनालिसिस भी हो सकती है, सोल्यूशन भी हो सकता है, पर वो बोलती नहीं है, कम बोलती हैं. तो किस तरह से आप अपने आप को पुट आउट करो, किस तरह से आप अपने पर्सनालिटी प्रोफाइल के बेसिस पे, मेरे जैसे तो सब नहीं होते ना, तो उसके बेसिस पे आप किस तरह से यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ डू यू मेक श्योर कंफर्टेबली आप अपने आप बोलने लगे, आप अपना पॉइंट मेक करें. तो पर्सनल ब्रांडिंग है, या मैं जैसे कह रही थी ESG, Gen AI, ये सब जो आजकल के टॉपिक्स हैं. सो द आइडिया इज टू मेक श्योर दैट यू फाइंड अ मेंटर जो तुम्हें जिस टॉपिक पे तुम्हें कवर करना है, जिस टॉपिक पे तुम चाहती हो, तुम्हें इनपुट चाहिए फॉर वॉट एवर रीजन, आप ले सके. दैट इज वॉट आई एम डूइंग विद द program. This is the program basically. We do events, we do in person. How many clients or how many women do you have in this? Well, I was told to start out with 100, but we are close to 1,000 now. Close to 1,000. Okay, and all in India? All in India. Few are there. Some have moved from India to overseas, and they have written to me to ask, can I please continue to be in the part of the program? I said certainly. Because this is right now available in India only. In India, yeah. Okay, and we have extended it to our member countries around, so that also we are looking at extending. So throw some light on personal branding. You know, I believe that you are known for personal branding and mentoring people on personal branding as well. Yeah, so personal branding, as I was saying, ये है Firstly, कि what is it? What is personal branding? अब हम सब एक रूम में बैठे हैं विपिन, और आप किसी को जानते नहीं हैं, उसके बारे में जानते हैं. ठीक है. सो जो मैं कह रही हूँ बारे में जानते हैं, तो आप कल्पना जैन को मिले नहीं हो, पहली बार ही मिल रहे हो, बट आपके जहन में ये है कि कल्पना जैन M&A एक्सपर्ट है, या कल्पना जैन बात बड़ी बढ़िया करती है यार, यू नो, काइंड ऑफ थिंग. सो ये पर्सनल ब्रांडिंग है. व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट आर यू रिकॉग्नाइज्ड फॉर, without you meeting anybody, that person, how that person perceives you. करेक्ट. सो नॉट नेसेसरली विदाउट यू मीटिंग एनीबडी, बट एक बारी भी बात करके, हाँ कल्पना जैन इज सो गुड एट दिस, तो आप किस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज किए जा सकते हो, क्या ब्रांड है आपका पर्सनल. आप, या ये भी हो सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, उसका सोल्यूशन जल्दी निकालने के लिए आप इसके पास जाओ, या ये पर्सन विल फाइंड द सोल्यूशन, यू नो, या ये ERP इम्प्लीमेंटेशन में एक्सपर्ट है. सो पर्सनल ब्रांडिंग इज कि आप पहचाने जाएं इन योर इमीडिएट सर्कल, इन योर एक्सटेंडेड सर्कल, फॉर समथिंग दैट यू आर वेरी गुड एट. तो नाउ इसके लिए चुप बैठ के तो नहीं हो सकता है. Firstly, why is it important? So that people know you. Tomorrow if that person is looking for a CFO, then they know, अरे यार वो कल्पना जैन बड़ी बढ़िया है, you know. Only for jobs? No. So you want to be allocated to the best projects in your organization.
Okay. तो सबको सोचना चाहिए यार कल्पना जैन टाइमलाइन बड़ी बढ़िया मीट करवा देती है, इसको ज़रूर डालना है इस प्रोजेक्ट में, या कल्पना इज़ एन एक्सपर्ट इन ERP इम्प्लीमेंटेशन, उसको ज़रूर लेना, या वो कंज्यूमर इंडस्ट्री में वो जो बंदा है वो बहुत अच्छा है तो उसको हमें इस प्रोजेक्ट में लें. सो इट्स टू गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज Okay. across anywhere. Number one. Number two, once you're recognized for your expertise, you will be called upon. You may Okay. not be on a project as such, but once you get recognized for an opportunity for mentoring, I'll reach out to Vipin, for example, to say, यार Vipin, मुझे podcast कैसे करते हैं बता दे यार. बता दे. And I'm not talking about the technical aspect. I How to understand. have a conversation How कि to सारा बता दे. frame- how तुमने to सब बतवा frame लिया it. मुझसे, हाँ. है ना? तो ऐसे यही तरीका है. मतलब you are known, become an expert. I Though know. you are a real estate person, हाँ. but this is also your ability and capability. yeah. So it is part of your branding. My personal branding. Correct. Okay. So कि इसके पास जाओ ये सब कुछ. correct. So Yeah, you no, get yeah. recognized, you get known, you get then approached, and you get more opportunities. So it builds on So itself. this is the use of it. Now, how do people get personal So branding? practical then? tip. हाँ. मैं इसमें एक स्टोरी Practical बना tip, दूँ. एक मेरी टीम में एक लड़की होती थी, हम्म. उससे क्वाइट लड़की मैं कभी नहीं मिली जिंदगी में. अच्छा. जिंदगी में हम्म. प्लीज नोट. तो मैं नोट करती थी जब हमारी ग्रुप मीटिंग्स होती थी वो कुछ नहीं बोलती थी. हम्म. एक आध बारी जब मैं उससे बात करी तो मुझे पता चला, द फीलिंग आई गॉट कि इसको, शी इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, बड़ी अच्छे से रिसर्च करके आती है, इसके आइडियाज़ भी बड़े अच्छे हैं, सोल्यूशंस भी बड़े अच्छे निकालती है, पर बोलती तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं बोलती. तो मैंने एक टैक्टिक यूज़ करनी शुरू करी, विच वॉज मैं राउंड रॉबिन करने लगी. मैं तो देखो कभी भी बोल सकती थी, तो मैं पैदा ही ऐसी हुई थी. मेरी मदर ने बोला एक बारी बोलनी शुरू हुई तो कभी नहीं पता लगा उसके बोलना. बट दिस गर्ल, तो मैं राउंड रॉबिन करके उसको उसके पास भी आता था, फिर हाँ. अच्छा अब तुम बोलो. एंड slowly, उससे number बोलना one, she शुरू किया. started getting the confidence to speak. She used to be very well prepared. One thing is, जो थोड़ा डिफिडेंट हो, जिसको थोड़ा लगे कि मुझे बोलने में कोफ्त होती है, वो प्रेपरेशन 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 प्रेपरेशन, जितना तुम अच्छा जानोगे उससे कोई उसको बीट नहीं कर Beat नहीं सकता. कर सकता. दैट्स वन. थोड़ा मेहनत करके. एंड एक और है, मैं को तो कोई नहीं बीच में काट सकता, लेकिन कोई बात नहीं. मे आई फिनिश, आराम से बोलो, मेरी ज़रूरत नहीं है मेरी जैसी आवाज़ की. आराम से बोलो, एक्सक्यूज मी. फाइनली लोग को शर्म आ जाती है तुम्हें फिनिश करने देते फिनिश हैं. करने के लिए. तो हाँ. दैट्स द सेकंड टिप. प्रिपेयर. सेकंड इज परसिस्टेंस. लगे रहो, छोड़ो मत, बोल के छोड़ो कि मुझे तो अपना पॉइंट मेक करना है. हाँ. सो ये लड़की की मैं कहानी फिनिश करती हूँ. सो एक दिन कोविड में मेरे को एक फ़ोन आया, एंड ये लड़की जो सबसे क्वाइट थी, जो मैं आपको हाँ, बता हाँ. रही थी, उसका कॉल था. और वो उसने कहा कि अभी आजकल कोविड में मैं आपको फ़ोन कर पा रही हूँ क्योंकि मैम घर पे बैठी हूँ, तो इसलिए मेरे पास टाइम है. और मेरे को 20 साल हो चुके होंगे शायद उसको गए हुए, जैसे मैंने कहा. तो वो कहती है कि मैम आप इमेजिन करो मैं क्या करती हूँ. मैंने कहा बता, कहीं कंसल्टेंट है क्या है. हाँ. इंटेलिजेंट तो बहुत ही थी. हम्म. तो कहती है नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ और मैं पढ़ाती हूँ, एंड आई एम मेरी रेटिंग एज अ प्रोफेसर वन ऑफ द हाईएस्ट है. वाओ. लंदन में पढ़ाती है, यूके में पढ़ाती है वो. वाओ. तो कहती है और मैं बहुत सालों से सोच रही हूँ कि मुझे आपको ज़रूर थैंक करना चाहिए क्योंकि आपने मुझे बोलना सिखाया. उससे पहले मैं इतना घबराती थी बोलने से, पर क्योंकि आपने मुझे बार बार मौका दिया, इंसिस्ट करा, और मेरा इंटेंशन ही ये था कि वो बोले, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है और बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है और बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन और एनालिसिस करती है. तो ये सबके लिए मैसेज है. जो कम बोले वो भी ये करें और जो मैनेजर लोग हैं वो भी बुलवाएं. तुम्हें उन्हें पता नहीं है कौन कहाँ क्या मिस कर रहे हैं हम. देखो एक जूल थी ना वो, ये समझो ना कि हीरा मिल गई मुझे उस तरह से. तो अगर मैं नहीं करती तो मैं उसको बस थोड़ा बहुत काम देती रहती और उसको जो उसकी कैपेबिलिटी वो नहीं रिकग्नाइज करती. मोर इम्पॉर्टेंटली वो खुद नहीं रिकग्नाइज करती उसमें क्या पॉसिबिलिटीज थी. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर एवरीबडी टू हैव. बेसिकली डरो मत, निकलो अपनी लाइन से, दायरे से बाहर जाओ, कोई बात नहीं. पर्सनल ब्रांडिंग के आप मुझे बताओ कि अगर आज मेरा कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है या वॉट एवर आई मे बी स्टार्टर, हाउ डू आई फ्रेम कि मेरा ये पर्सनल ब्रांड होना चाहिए. तो मैं ये कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? तो इसमें मैं एक प्रैक्टिकल टिप देती हूँ. मेरा एक छोटा सा जुमला है. आप पुराने ज़माने के हमारे जैसे लोग पेपर पेंसिल ले लें. हाँ. और नए ज़माने के आईपैड या फ़ोन ले लें. हाँ. या कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे आप उस पे अपनी स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बनाओ. क्या मैं क्या अच्छा करती हूँ, मैं क्या अच्छा करता हूँ. मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ. मैं नेबर से बहुत अच्छा इंटरैक्ट करती हूँ. मुझे न्यूज़ बहुत अच्छे से पता होती है क्या है, मैं खबर रखती हूँ. मैं एक्सेल शीट एनालिसिस में एक्सपर्ट हूँ.
मुझे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बड़ी अच्छी आती है, मैं सस्टेनेबिलिटी में एक्सपर्ट हूँ, जेन एआई में मेरे को सब पता है क्या हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ किसी भी तरह के, या मेरी हाइट बहुत अच्छी है, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट आई एम सेइंग, जो भी आप समझते हैं कि आपकी आपका स्ट्रेंथ है वो लिख लो। उसकी आप लिस्ट बना लो, लंबी सौड़ी लिस्ट बना लो, ठीक है। फिर उसमें से आप सेलेक्ट करिए कौन से में आप अपने आप को पुट आउट करना चाहते हैं, किसके कौन कैसे सी आप एरिया, पोर्ट्रे करना चाहते हैं, लोग नहीं आपको कैसे नहीं, क्या पोर्ट्रे क्या करना पोर्ट्रे चाहते हैं। करना है? सपोजिंग आप ईएसजी एक्सपर्टीज दिखाना चाहते हैं, या आप अपनी क्लाइंट डीलिंग या पीपल डीलिंग कैपेबिलिटी दिखाना चाहती है, आप 3 या 4 से ज़्यादा ना सेलेक्ट करें, जो आपको लगता है आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स हैं। उसके लिए फिर जो तुम कह रहे हो विपिन, तुम चूज करो कि अब मैं अपने आप को कैसे दिखाऊंगी इस एरिया में। सपोजिंग मैंने चुना कि मैं नेगोशिएशन में बड़ी एक्सपर्ट हूँ, सपोजिंग आपने कहा, तो आप नेगोशिएशन के बारे में सब पढ़िए, आप नेगोशिएशन की इवेंट हो, कॉन्फ्रेंस हो, वहाँ पे जाओ, मीटिंग हो, वहाँ पहले अटेंड करिए, आप ऑफर करिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ नेगोशिएशन की, मुझे नेगोशिएशन सपोर्ट में जाना है, मेरे को जाना है। आप चाहें तो शायद कोर्स कर लें एक, अगर आपको नेगोशिएशन का अपग्रेड करना हो, आजकल तो सब कुछ यू कैन डू एवरीथिंग ऑनलाइन इन एनी केस। सो द पॉइंट इज कि आप एक नेगोशिएशन में एक्सपर्ट दिखने लगे, लोग आपके आसपास के थोड़े आगे समझने लगे ये नेगोशिएशन में एक्सपर्ट है, आपकी ब्रांड बन जाएगी कि ये नेगोशिएशन में एक्सपर्ट है। देखिए, समझे ना? तो ऐसे 3-4 करिए, सारे नहीं हिट होंगे, ऑनेस्ट होना चाहिए, सारे नहीं हिट होंगे, क्योंकि खाली आपकी एफर्ट की बात नहीं होती, खाली आपकी कैपेबिलिटी की बात नहीं होती। अगर 5 नेगोशिएशन के एक्सपर्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हैं, तो शायद आपको वो मौका ना मिले। तो इसलिए आप 3-4 एरिया सेलेक्ट करिए, आप उसमें बिल्ड करिए और उसको बिल्ड करते चले जाइए। और पर्सनल ब्रांडिंग ओवरनाइट नहीं होती है, पर्सनल ब्रांडिंग लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है। अच्छा, लाइफ लॉन्ग जर्नी, लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है, और ये चेंज भी होता रहता है ब्रांड? हाँ बिल्कुल चेंज होता रहता है। आप लेट भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने 10 साल पहले नहीं किया तो आज आप नहीं कर सकते। अब आज से शुरू करिए, लेकिन इसको कंटिन्यू करिए। बिल्कुल विपुल चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको पहले कहानी सुना रही थी ना बिजनेस केमिस्ट्री की कि मैं जब मेरी रोल चेंज हो गया, तो मेरा जो एबिलिटी टू पुट पीपल टुगेदर, सबको इकट्ठा मिलके काम कराना है, कोलैबोरेशन है, वो ऊपर आ गई एज अ पर्सनालिटी प्रोफाइल। आई गॉट नोन फॉर दैट। पहले आई वाज नोन एज अ हार्ड टास्क मास्टर, बट देन आई गॉट नोन फॉर बिकमिंग somebody who could get people together to work. तो बिल्कुल चेंज होता रहता है with your change in role, with the change in the stature of your in your career wherever you are, बिल्कुल चेंज होता रहता है, डरिए मत उससे। और आपकी मल्टीपल ब्रांडिंग हो सकती है, वो भी हो सकती है, पर एक तो मिनिमम बनाना शुरू करें। बिल्कुल, मतलब 3-4 आप बनाओगे तो उसमें 2-3 कोई सक्सेसफुल होंगे, कोई इतना नहीं होगा, क्योंकि शायद उसमें आप उसी पे बिल्ड करते हैं। बिल्कुल बराबर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, आई सी अ फ्यू पीपल जो दूसरे को कॉपी करके अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो ये देखते हैं कि अच्छा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या मेरी इंडस्ट्री में, जैसे आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट ऑन रियल एस्टेट, तो सबने शुरू कर दिया, ठीक है। शुरू करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं वो जाके देखता हूँ, वो लोग वही सवाल पूछ रहे होते हैं जो मैं पूछ चुका हूँ, ठीक है, या उसी तरीके से कर रहे होते हैं। इज दैट ऑफ एनी यूज? तो देखो, मैं स्टार्टअप्स को बोलती थी ये, मैं स्टार्टअप्स को मेंटर करती आ रही हूँ पिछले 25 साल से। हाँ. तो मैं स्टार्टअप्स को बोलती थी कि आइडिया इज एज गुड एज नथिंग। हाँ, तो कोई मुझे बोलता था मैं आइडिया कैसे बता दूं, कोई चुरा लेगा। मैंने कहा अगर आइडिया तुम्हारा कोई चुरा सकता है तो और उसका कुछ बना सकता है, तो वो तुमसे ज़्यादा ही केपेबल हो शायद। हाँ. ठीक है, अगर तुम नहीं कर पाए। सो कॉपिंग से कुछ नहीं बनेगा, पर्सनल ब्रांडिंग तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग इज अ सम टोटल ऑफ जो भी कुछ आप हो, जो आप बचपन से लेके आज तक जो हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपके होने से बनती है, थ्रू द एक्सपीरियंसेस दैट यू गॉन। जब मैं आपसे कह रही हूँ आप अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो, तो आपने वो स्ट्रेंथ ओवर द इयर्स ही तो बिल्ड करी है। मैंने पॉडकास्टिंग शुरू इसलिए की क्योंकि मैंने ओवर द इयर्स, मेरा पहला जॉब मैं जिम इंस्ट्रक्टर था, मैंने कितने साल लैंडमार्क में प्रोग्राम्स लीड किए। जब मैं डायरेक्ट सेल्स करता था तब भी मैं सेल्स ट्रेनिंग लीड करता था, मेरा अपना प्रोग्राम भी है। मैं तो सारी जिंदगी बोल बोल के ही मतलब ट्रेन कर करके ही चला। बोलने वालों का क्लब है अलग से। हाँ, तो बेसिकली तो पर्सनल ब्रांडिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ ढूंढिए, कॉपी करना से ब्रांड नहीं बनेगा। बिल्कुल,
अब मैं कह दूं कि कोई और कॉपी करे आपको और वो वैसे बन जाए, कहाँ है डेप्थ उसमें? जो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल आपको बोला है, स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें, वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ अपनी है। स्ट्रेंथ आपने हाँ, करनी है अब तो identify। आप किसी को कॉपी करोगे तो दूसरे को देख के आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप जितनी अपनी स्ट्रेंथ निकालोगे उतनी तो आई थिंक। इसमें विपिन मुझे एक याद आ रहा है, मेरा एक और जुमला होता था, मैं अपनी टीम को कहा करती थी। मैं तो बड़ी हार्ड टास्क मास्टर थी, टफ बॉस थी मैं। तो मैंने कहा भाई तुम मेरे स्टाइल ऑफ मैनेजिंग नहीं कॉपी करो, तुम कॉपी करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तुम अपना स्टाइल डेवलप करो। अगर मैं हार्ड टास्क मास्टर हूँ या मैं किसी से प्यार से मोहब्बत से पीट के काम करा सकती हूँ, तुमको अपना स्टाइल ढूंढना पड़ेगा। तुम ये सोचो कि तुम मुझे कॉपी कर लोगे, वो नहीं होगा। इट इज़ अर्नड, यू कमांड इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने वो किया है और आप उसमें सक्सेसफुल हो। ये मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरी स्टोरी बता रहे हो, बस तो बिकॉज फिर मैं अपनी टीम को सेम चीज़ बोलता हूँ। आई हैव बीन अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, गाली दे के डंडा मार के काम कराता हूँ और सामने वाला करता है, और मेरी टीम ने जब भी मेरे को ये वाली चीज़ कॉपी की है फेल हो जाता है। हाँ फेल हुआ। पक्का। नाउ देव अंडरस्टूड। नहीं, ईच लीडर, ये तो मैं सबके लिए मैसेज है मेरा, ईच लीडर अपना स्टाइल डेवलप करो। इन्फ्लुएंस, इंस्पायर तुम 50 जगह से हो सकते हो, बट फाइनल जो यूनिक लीडर तुम बनोगे वो तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी पर्सनालिटी प्रोफाइल से डेवलप। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज पर्सनल ब्रांडिंग गोइंग फॉरवर्ड? 100%। तरीके आज से की डेट इंडिया में देयर इज डेवलप हो रही सो है। मच, इंडिया क्या ग्लोबली भी आप देखो Globally. तो विपिन, द पहले हम चुपचाप सब काम करते थे, कोई हमें जानता नहीं था, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन धीरे 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 करके बढ़ते जाते थे और अपनी कैपेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे रिटायर हो जाते थे। आज की डेट में देखो वर्क फोर्स बहुत बड़ी है, ऑल्सो सब एवरीबडी इज आउट देयर। सोशल मीडिया, द बिगेस्ट थिंग इन सोशल मीडिया फॉर मी, मुझे थोड़ा टाइम लगा सोशल मीडिया में ग्रेजुएट होने में। मुझे भी टाइम लगा। हाँ, ग्रेजुएट होने में, बिकॉज हम तो शुरू में तो वी वर वेरी डिसडेनफुल, ठीक है, बेकार की चीज़ें हैं, बच्चों की बकर, हाँ, वेस्टिंग टाइम वेस्ट है एंड एवरीथिंग। बट आज की We never रियलिटी है, thought that it will become mainstream. it is mainstream, much more mainstream than We any never other thought, media. yeah. So when you are building your personal branding today, the medium of delivering that personal branding, the recognition कि ये कोई इंसान इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट Exist या करता recognize, है। वो सोशल मीडिया के बिना नहीं हो सकता आज। सो और नंबर 1 सोशल मीडिया के बिना नहीं हो सकता, नंबर 2 तुम नहीं करोगे तो अपना तो कोई और करेगा ही। हाँ, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आजकल के प्रोफेशनल्स को उस हिसाब से, बिकॉज पहले चल जाता था, आप नाक नीचे रख के काम करके सक्सेसफुल हो जाते थे। आज नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। इट इज़ द रियलिटी ऑफ आपको टुडे। मौका ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा, आपको कोई याद ही नहीं करेगा, इतनी भीड़ है। यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पॉइंटर्स आई सेड व्हेन यू आस्क्ड मी पर्सनल ब्रांडिंग की क्या डेफिनेशन है, क्या होता है, आप कह रहे हो कि पूछेगा ही नहीं कोई। मेरे को एज सच पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर स्टडी नहीं किया, ये पता नहीं है, बट ये रोज फेस करते हैं तो मैं वहां से बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो वही है, फेस करने से ही तो थियरियां बनाते हैं फैंसी यूनिवर्सिटीज में। तो कल्पना एक चीज बताओ, अब इंटरनली तो जो भी आपके स्ट्रेंथ्स हैं, आपने पर्सनल ब्रांड बनाया और आप उसको उस पर्सनल ब्रांड को पोर्ट्रे कर रहे हो, लोग परसीव कर रहे हैं और वो आपकी स्ट्रेंथ भी है, थम्स अप है, ये चलेगा। बट समटाइम्स लोग पर्सनल ब्रांड बनाते हैं एक्सटर्नल उसके लिए, इंटरनली नहीं, कंपनी में नहीं, एक्सटर्नल आपकी मार्केट को, आपके कस्टमर्स को, आपके नेटवर्क को या आपके वेंडर्स को दिखाने के लिए। ये कैसे पता चलेगा एक्चुअली दिस इज व्हाट देयर स्ट्रेंथ्स आर? वो एडवर्टाइजिंग गिमिक भी तो हो सकता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग अगर आप खींच के देखें तो एडवर्टाइजिंग ही है। हाँ, नहीं वो तो and ठीक है। sometimes you advertise products which don't have value, which are not worth it. Most times you advertise products which have worth. So personal branding is really letting people know. And I didn't say internal. आप बोल रहे हो, आपने appreciate किया है कि वो internal है। मैंने तो आपको कहा कि आप सोशल मीडिया में डालिए, आप इवेंट्स पे जाइए, आप वहाँ बोलिए, तो आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग विद इन बनेगी वही विदाउट बनेगी, और कई बार विदाउट से विद इन भी बनेगी, क्योंकि ओ अच्छा ये जीएसटी में एक्सपर्ट है, हाँ। इसने जीएसटी में जाके उस कॉन्फ्रेंस में बोला, कितना अच्छा पेपर प्रेजेंट किया या पब्लिश किया कुछ पेपर, या सोशल मीडिया में डाला, लिंक्डइन पे डाला। सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम सोचेंगे अरे यार इसको तो हमने जीएसटी के लिए यूज ही नहीं किया। तो ये सीमलेस होता है। और जो आप एक्सपर्टीज की बात कर रहे हो, कुछ लोग, जब मैं कह रही हूँ स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें, तो उस पर हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। उस पर हार्डवर्क से मतलब यू नीड टू नो, सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए,
मल्टीपल ओकेजन्स होने चाहिए जब आप उसने इसको शोकेस किया या दिखाया. तो पर्सनल ब्रांडिंग कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अंदर होगी और बाहर नहीं होगी, या बाहर होगी तो अंदर नहीं होगी. ऐसा नहीं सेम ही होगा. होगा. इट हैज टू बी द You सेम. can't fake बिकॉज it. कितनी चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो सकते हो, आप एक्सपर्ट तो होना ही पड़ेगा. देखो हाँ. उसमें ये नहीं, हाँ यू कांट फेक इट, You can't fake it. बिल्कुल नहीं. आप फेक करोगे यू विल बी बूटेड. आज की डेट में तो बहुत ही जल्दी बूट हो जाते हो. बिकॉज आजकल बहुत सारे ऐसे भी करते हैं ना कि मेरे को दिखाना है अगर, तो मैं वो चैट जीपीटी से उठा के, जैसे अगर मुझे पॉडकास्ट भी करना है. 4 आप कॉन्वर्सेशन करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये हाँ. चैट जीपीटी से आया हुआ है, बंदे को कुछ नहीं आता. हम्म, इट इज़ नो बिग डील. हम्म, सो ऑनेस्टी टू सेल्फ तो सबसे पहली चीज़ है भाई. सबसे पहले तो यू मस्ट बी ऑनेस्ट टू सेल्फ, एंड यू कैन चूज टू टेक टाइम टू बिकम एन एक्सपर्ट इन समथिंग विच इज ओके. That's बस fine. हाँ. उसमें आप एफर्ट करिए ना, फिर बिना एफर्ट के तो नहीं होगा. That means there's a very interesting aspect then. Now, then advertisement can still be faked. A brochure can still be faked. Presentation can still be faked, but personal branding in a long term can't be faked. It'll be caught. It will be caught. You are, because you will be approached उस एरिया ऑफ के लिए, एक्सपर्टीज yeah. के लिए. और वो पता चल वो जाएगा पता कि चल जाएगा 2-3 इंटरेक्शन में ही, उससे पहले भी क्लियर हो जाएगा कि यार ये लिफाफा है, इसको कुछ नहीं आता. यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. तो ये तो बहुत अच्छी चीज है इसका मतलब. बहुत ही बढ़िया चीज़ है. हाँ बिल्कुल. फेक वंस विल बी आउट, नो डाउट. नो डाउट. हाँ. अच्छा, एक चीज और, कमिंग बैक टू वुमेन लीडरशिप, यू नो, नाउ एक वुमेन लीडर ही बोलूंगा. देयर इज अ सेलिब्रिटी, a Bollywood celebrity, and she very recently on a very well known podcast said that women, when they can work hard and they can build their careers, but when they reach their mid 30s, that is the time they should start focusing more on family, because they are natural nurturers, और उनको लीडरशिप छोड़ के वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, and that is good for the society or the family. Is that, what are your thoughts on that? तो मेरा तो पहला क्वेश्चन ये है कि मिड मैनेजमेंट में पहुंच के तुम बच्चे देखने शुरू करोगे तो उससे पहले बेचारे बच्चों का क्या होगा? ये बताओ मुझे. मतलब बच्चे तो पहले ही पैदा हो गए होंगे ना, आई एम अज्यूमिंग. हाँ. और मतलब फैमिली तो तुम्हारी उससे पहले भी होगी, बच्चे ना भी हो, यू कैन हैव योर फैमिली, योर ओन फैमिली, योर इन लॉज, एंड यू नो यू हैव रिलेशनशिप्स. तो मुझे तो ये लग रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता कि हाँ जी अब मैं 35 साल की हो गई, चलो भाई अब बच्चे देखूँ. हैं कहाँ हैं बच्चे? भूल भाल गए होंगे तुम्हें तब तक, चलो, या रूल गए होंगे तब तक. सो I think people are most welcome to their own views. This is completely against what I believe. And democratic इंसान हूँ भाई, तो बोलो जो बोलना. तो congratulations to you that you have that view. But I don't think society serve होती है. Women are equal human beings as men. They're equally intelligent. I don't want to say more, but you know, but they're at least equally intelligent. And they have aspirations. And I am 58 years old. I have a 30-year-old daughter and a 27-year-old son. And the pride I see in their eyes when they see you, when I talk about my career, when I talk about my achievements as a profession, is unbelievable. But that's not the reason to see pride in your children as a mother. That's not the reason I have a career. I have a career for self-actualization, which doesn't mean I can't be a good mother. It doesn't mean I can't be a good sister. It doesn't mean I can't be a good friend. I mean, I do everything. And I am the whole point is we have to figure out when to focus on what. That we have to do. I said, in every moment of time, you choose your priority. And to decide, I think women who give up their careers make poor mothers. I believe so, because उनके मन में ये मलाल रह जाती है कि हमने तो सब छोड़ दिया, हमने तो करा नहीं, हम तो सेल्फ अचीव हुए नहीं. वो प्रॉबली अपने बच्चों के नाक में दम कर देती है. मेरी तो व्यू ये है कि जो छोड़ देती हैं, जिन्होंने चूज किया है कि वो नहीं करना चाहती, उनको करना ही नहीं है, वो ठीक है. इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस. वेदर इट्स अ मैन और अ वुमन, देयर शुड बी इन द यूटोपियन वर्ल्ड अ चॉइस इन व्हाट यू वांट टू डू. And you can't be looking after kids, nurturing, as you're saying, 24 hours a day. It's impossible. No, it's not. It's impossible. You will become helicopter mothers. वो भी परेशान हो जाएंगे. बिल्कुल. मेरे तो बच्चे कहते हैं कि नहीं मम्मी आप प्लीज़ वर्क करो. मैंने एक बताती हूँ कहानी. 14 साल का मेरा बेटा था. एक दिन मेरी बॉस से लड़ाई हो गई ऑफिस में. घर आई मैं, तो मैंने कहा बस मैं कल रिज़ाइन कर रही हूँ.
तो वो बैठा हुआ था कंप्यूटर पे काम कर रहा था, लैपटॉप नहीं था, डेस्कटॉप था तब। तो कहता है उसने भाव नहीं दिया, फिर मैंने दोबारा कहा, तो कहते क्या हो गया मम्मी? तो मैंने बोला कि भाई मैं बहुत इनफ हो गया, मैं नहीं कर रही काम। तो नहीं नहीं मम्मी आपको तो काम करना पड़ेगा, क्या करोगे नहीं तो? तो कहता है, मैंने कहा क्यों क्या करूंगी, तुम लुक आफ्टर यू, तो अलमारी का हाल देखा है, कभी ठीक से लगाते हो? खाने पीने का अपना कोई टाइम नहीं है, होमवर्क कर लिया है तुमने? मम्मी 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 वेट वेट वेट, सुनो सुनो मम्मी, आके बैठ गया मेरे साथ बगल में मेरे, कहता है देखो मम्मी, you have to work, it's very important, you are an intelligent woman, you must be applied at work, you need to work, you want me to call up your boss? मैंने नहीं, माफ कर दे मुझे, by the time I was beginning to enjoy himself, but he said no no, you are too intelligent to be sitting at home, हमारा तो लाइफ में नाक में दम कर दोगी तो मम्मी बिल्कुल बराबर कर दोगी। तो मैं then of course I started laughing, I had no intentions of giving up my career. You can choose pace, भाई जब तुम्हारा बच्चा बेबी है तो तुम हाफ डे वर्क कर लो, few hours मैंने किया। जब मेरी बेटी was until she was 1 year old, I worked half day. I went back to work at 5 months and worked half day. Choose your pace. Fortunately आज की evolving दुनिया में बहुत opportunities है, बहुत opportunities है, so उनका फ़ायदा उठाओ and you can pace. अब मैं high pace करियर में हूँ, अब मैं थोड़ा slow down, but ये इसमें हमें अपनी मेच्योरिटी एज विमेन वी नीड टू हैव द मेच्योरिटी कि हम ये बाय चॉइस कर रहे हैं, कोई किसी का हक नहीं बनता किसी और को पुश करने का। तो कोई ये कहे कि सबको ये करना चाहिए और 35 पे गिव अप करना चाहिए, आई एम सॉरी, दे आर नॉट इंक्लूसिव ऑफ द सोसाइटी। तो फिर तो ठीक ही है, ऐसे लोग तो सोच रहे हैं कि हम डिफाइन करें कौन, आई एम सॉरी। मैं तो बिलीव करती हूँ ईच इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, मैन वुमन चाइल्ड एजड, नीड्स टू चूज फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. And there is no need for women to give up their careers. In fact, I strongly advise against it. They may slow down. They have to keep in touch. 2 घंटे रोज तुम devote करो to make sure that you are informed about the technology you work in, the area that you work in when you are taking a break. Kalpana, also I believe that for a healthy country, especially we are developing, for a healthy nation to come up, there has to be women in the workforce. मतलब चांस ही नहीं है कि ना हो। मेरे लिए तो ये डिबेट ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं है, डिबेट ही नहीं है। हाँ नहीं, आई एग्री विद यू, women are equal human beings, they need to work together, everybody has to work भाई। आप नॉर्वे में देखिए, आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन नॉर्वे, शी टेल्स मी दैट कोई वहाँ पे काम ना करे, man or women, even when they're 75 80 years plus, it is a big question. Oh, you don't have a job, oh you don't work, men women notwithstanding, so there are nobody who doesn't work. That's why they're one of the most prosperous countries in the world. To your point, that we all have to work. It's part of what we do, which also means, by the way, it doesn't mean that a woman is a superwoman 3 times over and the man comes home and puts up his arms and sits and watches TV and yells out, "Kya re bhai chai dena." वो नहीं चलेगा. The generations we are bringing up, the girls we have liberated, the boys also we need to liberate. They need to be less privileged and take on the role and responsibility of living home together, of leading the home together. That leads me to the final question or final set of questions, which is around a topic a lot of people have spoken about, which is work-life balance. Now, it also includes the hard work that we spoke about, and it also includes the balance not only between work and life, it also includes the balance between man and a woman, especially if they're running a home together. So your thoughts? तो देखो जी, मैं इस पे मेरी पहले पिटाई भी हो चुकी है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस मैंने बोल दिया था, बोले कि तुम्हारे जैसे कसाई ऐसे जवाब देते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि वर्क लाइफ क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं हम? Isn't work a part of life? It is. Every month जब मेरे अकाउंट में टिंग करके अमाउंट गिरता है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है, ठीक है। और हर एक का डिफरेंट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल पर्पसेस, फाइनेंशियल नीड्स होती है। तो काम हम एक तो फाइनेंशियल नीड्स के लिए करते हैं, दूसरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए करते हैं। तो इसमें वर्क बुरा कहाँ से हो गया? द मोमेंट दिस डिबेट और वर्क लाइफ एज एक चीज, लाइफ जो बढ़िया चीज है और एक वर्क जो बहुत खराब चीज है, मेरे को इससे बहुत कोफ्त होती है। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली, इट्स अ रॉन्ग approach we are taking. Wrong phrase, I would say. हाँ, it's wrong. It should be life balance, And life का एक part work है. I am 100% aligned that it's not the only thing to do in life. I'm very, very clear. You have to do every aspect of life. I would declare my life a success and your life and everybody else's life a success is if they have elements of whatever matters to them in their life. तो काम है तो काम है,
पार्टी जाना है तो पार्टी जाना है, या भजन करने तो भजन करने हैं, या तीर्थ करना है तो तीर्थ करना है, या कुक करना है तो कुक करना है, या दोस्तों से मिलना है तो दोस्तों से मिलना है, या ट्रैवल करना है, या रीड करना है. एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू. एंड हियर अगेन आई एम 100% डेमोक्रेटिक. हो सकता है तुम पढ़ते हो, मैं नहीं पढ़ती हूँ, मर्जी है. मुझे गॉसिप करने में मजा आता हो सकता है, वो भी ठीक है. So long as it's not negative and doesn't ruin other people's lives, it's okay. But so each one of us has to define for ourselves what is important to us, and उसके हिसाब से वो elements हम अपनी जिंदगी में भर लें. और देखो, सब चीज़ चॉइस भी नहीं होती है, कुछ चीज़ें हमें करनी ही पड़ती है. If you are in a Certain family, circumstances sometimes you have. not circumstances also. In a family, you will look after your family members. As a part of a friend, you will look after your friends and do things for each other besides having fun with each other. So to my mind, work life balance को demonize कर दिया है work को. Demonize करने की कोई बात नहीं है work को. Work has its very very important So I think place it in should life. be life balance. It's life or balance. it Life should be a balance. balanced life. बिल्कुल. So if you are working 18 hours a day and never seeing your family, or never having mind space for your family, or having no mind space for music which you love, or having no mind space for your friends whom you want to spend time with, there is a problem. This problem is also okay if it's for a very short period of time. So long as आज मेरा project deliver हो गया, कल से तो भैया मैं जा रहा हूँ छुट्टी मनाने श्रीनगर अपने दोस्तों के साथ. You know what I mean? So the balance is found over a period of time, not in every moment. In every moment you have to do what is most important. मेरा एक favorite example है, तुम्हारे बच्चे को 104 बुखार है और तुम्हारी बोर्ड मीटिंग है, भाड़ में जाए बोर्ड मीटिंग, 104 बच्चा है, पहले वो देख लो. वो बच्चे को देखो, बच्चे का बुखार उतर गया है, 100 आ गया है, लेट्स से नेबर तुम्हारी आ गई है, बैठने को तैयार है बच्चे के पास, तुम अपने बोर्ड मीटिंग में जाके बोर्ड मीटिंग करके आ जाओ. इसमें हमारी गिल्ट जरूर आती है बीच में, एज अ पेरेंट गिल्ट आती है. बट माई एडवाइस टू वुमेन, डू नॉट सेट असाइड, इंटेलेक्चुअलाइज योर गिल्ट एंड से दिस इज नॉट रैशनल. जब बच्चे की ज़रूरत अहम थी, मैं यहीं थी. अब मेरी जो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट करना है वो ज़्यादा अहम है, तो जाके करो बेसिकली. हाँ, इसको मैं एक और तरीके से पुट अप करूँगा कल्पना, दैट मैं बैलेंस लाइफ, मेरे ख्याल से हम उसको कह सकते हैं कि जहाँ हमारे जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे को ओवर रूल ना कर रहे हैं. वी हैव अ बैलेंस हेड, आई वुड से. इफ वी कैन हैव अ बैलेंस हेड, हर एक की 6 प्रायोरिटी है, या 6, जैसे आपने बोला कि आपको जो मैटर करती है. मेरे को अगर गोल्फ, वर्कआउट, फैमिली टाइम, वर्क, ये मैटर करता है. इनमें से कोई भी चीज़ कमती बढ़ती होगी ना तो मेरा बैलेंस हिलेगा. तो मेरे केस में तो यही एग्जाम्पलिफाई है. अगर मैं वो कर लूं तो बैलेंस है, तो बैलेंस लाइफ है. दूसरी चीज, कई बार वो बैलेंस हिलता नहीं है, हम इमोशनली वीक हैं, जहां पे हम थोड़ा सा भी हिलने पे हमारा बैलेंस हिल जाता है. सो आई थिंक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड, द वे वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलपिंग कंट्री. People need to understand their emotions as well, and do not I would say highlight it, or not even highlight, do not exaggerate the emotions. A lot of times, thanks to social media, हर एक चीज़ के pros and cons होते हैं. Sometimes उसके cons भी हैं कि हम उसको exaggerate करते हैं. हुआ इतनी सी बात होती है, मगर हम 18 व्हाट्सएप भेज देते हैं, 12 मिस्ड कॉल कर देते हैं. अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया अलाउ भी कर देता है ना, वो अलाउ कर देता है, और सोशल मीडिया में 10 कमेंट कर देते हैं. जैसे मेरी कोई एक गॉड के ऊपर किसी ने कुछ सिंपल सी चीज़ बोली थी, उसके ऊपर 16,000 कमेंट है, और उसमें यही हो रहा है, राम बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, जीसस बड़ा है, ये सब चली जा रहा है. ठीक है, अब मैं खुश हो सकता हूँ कि मेरे 5 लाख व्यूज़ हो गए, ये हो गए, मगर वो लोग कर क्या रहे हैं? मैं उनको अगर देखूँ बाहर से बैठ के, उन्होंने तो अपनी इमोशन की अप डाउन कर दिया. अब वहाँ कौन सा वर्क लाइफ बैलेंस आएगा? It's actually what you're saying, emotional strength. It is also about self-awareness. Yeah. And self-awareness मतलब हम अपने को समझें, अपने को एनालाइज करें, रादर देन बाहर से क्या हमको रिसीट हो रहे हैं, सिग्नल्स जो मिल रहे हैं उन्हीं को हम देखें, उनको रिसीव जिनसे करें. हमारा कोई लेना देना नहीं है. बिल्कुल. हमारे लाइफ की 5-7 ही प्रायोरिटीज होती हैं किसी भी इंसान की. हर एक की फर्क हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती हैं, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, पर 5-7 होंगी. बिल्कुल. आप उन पे फोकस करो, वर्सेस
दुनिया में क्या हो रहा है और उसके ऊपर आग लगाने के लिए अपने इमोशन बट देखो ऐसा है, हाई करते हैं। कोविड के दिनों में जब वन वाज नॉट सपोज टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, हाँ। तो मैं सुबह 6 बजे रोज अपना थैला लपेट के कि सपोजिटली सब्जी लेने जा रही हूँ, एक दिन भी नहीं लाई सब्जी। हाँ। मैं 6 बजे 6 से 7 वॉक करती थी कि सारे दिन तो अंदर बंद होके बंद काम होके करना है, तो मेरे को तो वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे को पर्सनली किसी ने नहीं कमेंट किया, लेकिन हमारा जो रेजिडेंट्स एसोसिएशन का व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर आए, तो मैंने बोला भाई इन लोगों को कुछ काम नहीं है कि बालकनी में लटके बैठे रहते हैं कि कौन चल के जा रहा है, कौन चल के जा रहा है। मैं तो खैर मैं तो टेक्निकली सब्जी का थैला लेके जाती थी, देखो कि एक दिन भी नहीं लाई मैं सब्जी वहाँ से। सब्जी यूज्ड टू गेट डिलीवर्ड एट होम इन दोस डेज। बट तो कुछ लोग होते हैं, टू योर पॉइंट, कि कुछ लोग होते हैं जो बालकनी में लटके होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कमेंट करना होता है, चाहे उनकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़े या ना पड़े। So I would say one of the big assets of being a successful leader, or if you want to succeed in leader, is that don't let a lot of what comes from the outside if impact you. So I think if you see so many successful people, or rather well-known public figures, they have to inure themselves to what is being said, because today it is very easy to just say anything for anybody and Yeah. there is no accountability. तो इसलिए ये inure और ये इमोशनल स्ट्रेंथ टू यूज़ योर वर्ड और मेरा सेल्फ अवेयरनेस वर्ड, इट्स वेरी सेंट्रल। जब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी बना रहे हैं, उसमें भी आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप इसके लिए क्या करते हो? Emotional strength, definitely. What do you do? I'll be honest कि मैं, अगर कोई कुछ बोलता है तो बॉदर करता है मुझे, बट मैं बहुत जल्दी रैशनलाइज कर लेती हूँ उसको, तो डिस्टेबलाइज तो होती हूँ। देखो ये झूठ बोलूंगी मैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं। कुछ चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं, जैसे आपने पूछा ये गिविंग अप वर्क एट 35 और वट एवर, मिड मैनेजमेंट इज बुलशिट। आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, बट दैट्स नॉनसेंस। तो वो तो मुझे बिल्कुल ही नहीं रिएक्ट करती उस तरह से। मैं बड़ी इक्वानिमसली, मैं तो आई हैव अचीव्ड निर्वाण अबाउट इट, शैल वी से। बट when your friends, family, even your extended family and may say extended anything. friends say, it does sometimes hurt you, it does sometimes bother you, but I think we need to rationalize it. करती तो ये मैं सोचती हूँ बैठ के कि भाई प्रोज एंड कॉन्स क्या। मैं पेपर पेंसिल वाली हूँ ना, बहुत बारी पेपर पेंसिल यूज़ किया है मैंने। आजकल मैं बोलती हूँ किसी को तो वो सोचते हैं पुरानी आंटी है, क्योंकि आजकल तो आईपैड और वो यूज़ करना चाहिए ना, फ़ोन टेक्निकल। सो आई थिंक द ओनली वे टू डू इट इज़ टू थिंक थ्रू। एंड एक चीज़ और है विच इज़, ये मैंने साल ओवर टाइम सीखा है कि ऑफन इंसान का ना इल इंटेंशन नहीं होता। जो बोलने वाले होते हैं, जो जजमेंट सेट करने वाले होते हैं, उनको वो या तो उनका कॉन्टेक्स्ट फ़र्क होता है, या वो समझते नहीं है, दे डोंट हैव फुल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप ये मान लो कि उसने किसी गुड इंटेंशन से ही कहा होगा, या उसका इंटेंशन प्योरली इवल नहीं था, या उसकी अवेयरनेस नहीं थी, उसको समझ नहीं थी, उसको क्या पता, तो आपको शांति हो जाएगी। So that's a way of coping with it also. So then you feel कि यार ठीक है यार, उसको क्या पता, it's okay. या कुछ लोग खराब भी हो सकते हैं कभी, but it is better to believe कि नहीं है खराब intention. It is better to believe 100% true हो या ना हो, for your peace of mind. And this is something I do too. Final question, do you intend to join politics? No, never. Why? Very difficult question पूछ रहे हो यार तुम। I'll tell you why I'm asking this. No, I have a story to tell about that. If you have एक बार मेरी गाड़ी टो अवे हो गई है कनॉट प्लेस के पास। मैं क्लाइंट मीटिंग में गई, लेट हो रही थी, तो वहाँ पे लाइन बनी हुई थी, मैंने पार्क कर दी, मैं चली गई। फिर मेरी गाड़ी टो हो गई, पुलिस थाने में पहुँची, तो मैंने कहा आपने मेरी गाड़ी कैसे टो कर ली? मैं तो लड़ ली ज़ोर ज़ोर से। तो वो कहता है मैडम आप ऐसा करो, आप मैडम, मैंने कहा मेरे को अपने बच्चे को पिक करने जाना था और आपने मेरी गाड़ी टो कर ली, मैं लाइन के अंदर थी, और थी मैं लाइन के अंदर, उनकी गड़बड़ थी वहाँ पे कुछ। तो कहता मैडम जी आप ऐसा करो, आप ना बीजेपी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा क्यों कर लूँ ज्वाइन बीजेपी? मुझे नहीं बीजेपी ज्वाइन कर, सुनो तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। फिर मैंने कहा मुझे नहीं करनी बीजेपी ज्वाइन, तो आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मुझे कांग्रेस भी नहीं ज्वाइन कर ली। तो कहता मैंने कहा आप ऐसे कैसे बोलो? ना मैडम आप जाओ, आप काम कोई फाइन नहीं करे, आप बड़ा बढ़िया बोलती हो। हम इसीलिए आपको कह रहे थे पॉलिटिक्स में चले जाओ। मैं भी आपको इसीलिए कह रहा था। So वो policeman and you are on the same plane. Yeah. See, अभी I just saw a podcast of Nikhil Kamath with our Prime Minister, and he had the same thing to say, and I was very inspired by what he had to say, that we need at least 1 lakh new people in the politics. We do. Where we shouldn't. अभी तक क्या हुआ, हम वो इमेज को ना हमने खराब ही समझा है
कि जो पॉलिटिक्स में गया वो खराब ही है, it is muddy, so we shouldn't go. But I think people, leaders like you should be there. Vipin, to be honest, earlier view was that जो politics में गया वो खराब ही है. खराब ही है, हाँ. उसके बाद एक और व्यू निकला था कि साफ लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे और पॉलिटिक्स इम्प्रूव हो जाएगी, बट वो भी मडी हो गए हैं. हाँ. So that is very disheartening. हाँ. That's very disheartening. But that So- doesn't mean we stop trying. Fair point. Huh. Fair point. If we stop trying, then we'll never improve. Yeah. Yeah. So fair point. Huh. ठीक है, I will take it as something to dwell on. Dwell on. I'll think about it. I got it. Because I'm I've taken it as not as a mission, but as a trial that people who I believe can be in politics, I will put that across to them. Wow. Thank you. Thank you for reposing the trust in me. I must say, I'm touched indeed. Yeah. Thank you so much, Kalpana. It was indeed a very engaging conversation. I'm sure that people who are leaders and who are aspiring to be one, it will be very useful for them, especially women of our country and the world. Thank you, Vipin. I didn't realize I would enjoy this conversation so much. Thank you so much for inviting me. Thank you so much.